سبحان اللہ. علی تیرے لیے میرا مرنا ہے رجیم. علی تیرے لیے علی پیدا ہوتا سمجھ میں آیا رب نے بنوایا تو کعبہ علی تیرے لیے. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد السلام علیکم. نئے سلوار. اللهم صل على محمد اسے چراغ دین کا جلایا حسین نے. اسے چراغ دین کا جلایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا. کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے. سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے. تعمیر پیغمبر کی وہ دیوار علی ہے. تعمیر پیغمبر کی وہ دیوار علی ہے. اب اپنے سفینے کو ہے کس بات کا خطرہ. اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے. اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے. دوسرا نام علی سانہ ابھرتے دیکھا. ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا. اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے سدا سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا. سدا سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا. زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا. ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا. ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا. عباس کی بہن کے شجاعت کو دیکھیے. قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا. قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا. عشق شبیر کے سانچوں میں مجھے ڈالا ہے. عشق شبیر کے سانچوں میں مجھے ڈالا ہے. ہوں ادادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے. ہوں ادادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے. جان دے دوں گا آدھا شاہ والوں کے لیے. میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. حیدر بنی کبھی شبیر ہے زینب. قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. بغض عمر کی دین پہ زنجیر ہے زینب. بے تیل لڑکے عباس علمدار بن گئی. اور آج لہجے میں حیدر کرار بن گئی. اور آج لہجے میں حیدر کرار بن گئی. ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام. ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام. پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ چلا تو پھر چلتے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موت کی آغوش میں جب سو جاتی ہے ماں.
تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں زندگی میں عیش عشرت جب ملے غربت کے بعد بس خدا ہی جانتا ہے کتنی یاد آتی ہے ماں اور عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کے پاس عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پاس ہٹ گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے پھر دوست میں بھیج کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں جو زباں پر بھی نہ آئے دل میں گھٹ کر رہ گئے ایسا کچھ ارمان اپنے ساتھ لے جاتی ہے ماں مرتے دم بچے نہ پائے اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنے ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں اپنا دکھ اولاد کو ظاہر کبھی کرتی نہیں دیکھ کر خاموش بچے تو طرف ہو جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے اس کی مر جاتی ہے ماں درمیان دیوار میں بنتا ہے اس اقبال کو درمیان دیوار میں بنتا ہے اس اقبال کو خانہ کعبہ کے جب نزدیک آ جاتی ہے ماں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
چار مصرے واضح فرمائیں. یہ مجلس برسی بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس مجلس کے پیچھے اس لیے کہ ایک ہفتے کے بعد جو بچیوں کا عقد ہے اسی گھر میں تو ظاہر سی بات ہے اسے مجلس تقدیم عقد بھی کہا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں کا دستور رہا ہے جب بھی ہم کسی خوشی کو حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہم خوشی میں بھی آل محمد کو بھولتے نہیں ہیں. تو بھی محمد آل محمد پر اور ایک روایت جہاں تک میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب شہاب الدین زہری امام تعظم یہاں گئے کہا مولا چلیے میری بچے کی شادی ہے تو امام نے کہا کہ دیکھیے ہم کربلا کے واقعے کے بعد شادیوں میں جانا ترک کر کیے ہیں. تو شہاب الدین زہری نے کہا مولا بتائیے تو کیا ہوگا. تو امام تعظم نے کہا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کی مجلس قائم کرو تو میں آ سکتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ امام آئے. مولانا فرمانے اسی زمین میں ابھی 4 مصرے ہو گئے یہیں پر لکھا ہوں. ازائے سبت نبی سے لیے مناتے ہیں ازائے سبت نبی سے لیے مناتے ہیں ازائے سبت نبی سے لیے مناتے ہیں ہمارے قلب اسی سے سکون پاتے ہیں ہمارے قلب اسی سے سکون پاتے ہیں. تیسرا چوتھا مصرع فرمائیں ہمارے قلب اسی سے سکون پاتے ہیں. تو جہاں بھی مجلس تقدیم عقد ہوتی ہے جہاں بھی مجلس تقدیم عقد ہوتی ہے وہاں امام چہارم ضرور آئے. جہاں بھی مجلس تقدیم عقد ہوتی ہے وہاں امام چہارم ضرور آتے ہیں وہاں امام چہارم ضرور آتے ہیں. اور 4 مصرے اسی دن میں ماذا فرما لیں جو بھی محمد والے محمد جو صبح شام کوششوں تدبیر کرتے ہیں جو صبح شام کوششوں تدبیر کرتے ہیں انسان کہاں وہ شکوے تقدیر کرتے ہیں انسان کہاں وہ شکوے تقدیر کرتے ہیں. تو خوشیاں ہوئی نصیب تو شکر خدا کے ساتھ خوشیاں ہوئی نصیب تو شکر خدا کے ساتھ ہم پہلے گھر میں مجلس شبیر کرتے ہیں خوشیاں ہوئی نصیب تو شکر خدا کے ساتھ ہم پہلے گھر میں مجلس شبیر کرتے ہیں. محمد وعلى محمد. فرمانے تو شہزادی کے حوالے سے لوہے کے چند بند اشک غم پر کوتے اپنی جو سجا لیتے ہیں اشک غم پر کوتے اپنی جو سجا لیتے ہیں اشک غم پر کوتے اپنی
सजा लेते हैं, बिनते पैगंबर आजम से दुआ लेते हैं, बिनते पैगंबर आजम से दुआ लेते हैं। तो फर्शे गम जुमला शहीदों का बिछा कर अक्सर, फर्शे गम जुमला शहीदों का बिछा कर अक्सर, अपने घर फातिमा जहरा को बुला लेते हैं, अपने घर फर्शे गम जुमला शहीदों का बिछा कर अक्सर, अपने घर फातिमा जहरा को बुला लेते हैं, अश्के गम पलकों पे अपनी को सजा लेते हैं। अब यहाँ से शहजादी के हवाले से ये कि 8 शव्वाल को निजाम जब बाकी है, आज भी वो बीवी जो है बेसाया है, ज्यादा लोहे की चंद बंद तड़प तड़प के ये कहती है फातिमा ज़हरा, तड़प तड़प के ये कहती है फातिमा ज़हरा, पसलियाँ टूट गई है बाबा, गिराया मुझे पे लाइनों ने जलता दरवाजा, पसलियाँ टूट गई है बाबा, हर एक लम्हा में अपने पिसर को रो, भला बता ओ मैं मोहसिन को कैसे भूलूंगी, शहीद हो गया मेरे शिकम में वो बेटा, पसलियाँ टूट गई है बाबा, सितमशार ने मुझ पे है वो सितम ढाया, कमर खमीदा हुई दस्त मेरा जख्मी हुआ, ऐ बाबा देखो मेरा हाथ अब नहीं उठता, ऐ बाबा देखो मेरा हाथ अब नहीं उठता, पसलियाँ टूट गई है बाबा, सितम जो मुझे पे हुए वो बताऊं मैं कैसे, अगर दिनों पे वो पड़ते स्याह हो जाते, गम अलम में है डूबा हुआ मेरा नौहा, पसलियाँ टूट गई है बाबा, भला भुलाऊं कैसे भला आपका मैं गम बाबा, मैं रो रही हूँ तो रोने नहीं दिया जाता, अजीब कर वो में डूबा है मरसिया मेरा, पसलियाँ टूट गई है बाबा, जो
میرے نہیں فوجی گھر میں ہے خون کو اٹھ جاتی گیا وہ کو ہے عالم ہو گیا جگر پارا پسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا غم بطور میں ڈوبا ہوا زمانہ ہے امام وقت بھی پردے میں آج روتا ہے خود اپنی جان کے بھی سوگوار ہے مولا پسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا رقم ہو کیسے بھلا غم کی داستان مہدی رقم ہو کیسے بھلا غم کی داستان مہدی غموں کا پڑھاتی تھی ہر وقت مرثیہ بھی ہمارے رونے کو کافی ہے بس یہی فقرہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا تڑپ تڑپ کہ یہ کہتی ہے فاطمہ زہرا آئیے میں بڑے ہی ادب احترام سے مولانا موصوف کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے نعرہ صلوات آواز بلند صلوات فاتحہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خزان گرامی اس سے پہلے کہ
اس آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہوئے دیگر آیتوں کی روشنی میں اور کچھ احادیث و روایات اسی سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے منزل مقصود تک اس پروگرام کو، اس مجلس شہداء کربلا و سید الشہداء کو اپنے اتمام و اکمال اور اختتام کی منزل تک پہنچایا ہے۔ دو طرفہ تعاون کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ جو لائق النساء بنت محمد نعیم مرحومہ کی روح کو محمد والوں کے صدقے میں اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، برادران اسلامی اور ایمانی و انسانی و بزرگان قوم و ملت اور ہماری معظم و محترم لائق صد آفرین و احترام مائیں اور بہنیں اور بچیاں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ شاید کچھ آیات و روایات کی روشنی میں آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ بھی نماز کے وقت میں بھی کافی وقت ہے، گنجائش ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زوال سے پہلے یہ ذاکری اور خطابت اور مجلس بیان اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ یہ ہم لوگ کچھ ممبر میں بیٹھالا جاتا ہے اکثر جگہوں پہ، تو اس میں اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے، چاہے سامع کی حیثیت سے رہے ہوں چاہے ذاکر کی حیثیت سے رہے ہوں، اکثر نماز کے اوقات ہی میں بیٹھالا جاتا ہے اور مجبوراً ذاکر اور خطیب کو بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کرے وہ۔ لیکن ہمارے کچھ بعمل علماء و ذاکرین و خطبہ ہیں کہ اگر نماز کے وقت کوئی مجلس شروع کرتا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر مجلس پڑھتے ہیں، ممبر پہ پھر بعد میں آتے ہیں، یا تو پھر اپنے پہلے مجلس شروع کروا کے ختم کی جائے، نماز کا وقت اور وضو کا وقت باقی رہے اور لوگ اول وقت نماز وقت ظہر یا نماز مغرب جو بھی ہو پڑھیں، اس لیے کہ وہی ہماری پہچان ہے۔ صلوات ہمارے محمد اور یا تو پھر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ کے شروع کی جائے۔ لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ نماز سے پہلے ایسے وقت شروع ہو جائے کہ نماز سے پہلے باقاعدہ کچھ بیان بھی کیا جا سکے اور مجلس اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ جائے۔ خداوند عالم والدین کی، ماں باپ کی عظمت، شان و منزلت، فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن میں بہت ساری آیات میں ان کے سلسلے میں اعلان و بیان فرمایا ہے۔ احادیث و روایات بھری ہوئی ہیں والدین کی اور ماں باپ کی عظمت فضیلت کے سلسلے میں۔ ان میں سے
انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے خاص طور سے والدین کا ذکر فرمایا ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ۔ انبیاء کرام نے قرآن مجید میں جو دعائیہ کلمات اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائے ہیں، قرآن کے نزول سے پہلے انبیاء ما سبق نے، قرآن تو پیغمبر ختمی مرتبہ پر نازل ہوا نا، مگر ان سے پہلے جن انبیاء نے بھی پروردگار عالم کو کبھی دعائیہ انداز میں پکارا ہے تو لفظ رب سے پکارا ہے۔ زیادہ تر رب میں ایک خاص انسیت، الفت، محبت، عطوفت، رعوفت کا پہلو پایا جاتا ہے جو دیگر ناموں میں اتنا نہیں پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم نے، پروردگار عالم نے، رب العزت نے، قادر مطلق نے پیغمبر اکرم کو ایک جگہ حکم دیتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صلوات علی محمد باقاعدہ حکم دیا، آرڈر دیا ہے پیغمبر آپ کہیے، کیا کہیے کہ پالنے والے رب ارحمہما، پالنے والے تو رحم فرما، مہربانی فرما، الفت، انسیت، عطوفت اور رؤفت فرما، اسی طرح سے جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحمت و الفت و محبت و انسیت کو اور ممتا کو اور حق کے قدری کو نشاور کیا ہے۔ صلوات محمد۔ مگر دونوں آیتوں میں عرش و فرش کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آیت جس میں ہم نے عنوان بیان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس میں خاص والدین کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت میں جس میں پیغمبر کو خداوند عالم نے حکم دیا اس میں عام ماں باپ کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ماں باپ کئی ہو سکتے ہیں مگر والدین ایک ہی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ جب خاص والدین کا ذکر کرنا ہوا تو رب اغفر لی ولی والدیہ انشکر لی والدیہ فرمایا اللہ نے، لیکن جب کچھ لوگوں کے ماں باپ بچپنے میں گزر جاتے ہیں تو کچھ اور لوگ انہیں پروان چڑھا دیتے ہیں، ان کو بھی خداوند عالم نے فراموش نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ جب ماں باپ کے ذریعے سے لباس وجود و زیور وجود سے آراستہ کر کے شکم مادر سے نطفہ پدری سے اس دنیا میں بھیجا، اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے بھیجا، ان کا خیال بھی رکھا، اور اگر کسی کے والدین اور کسی کے ماں باپ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے گزر جائے اور کسی اور کے ذریعے سے پرورش پا جائے وہ بچہ یا وہ بچی، تو ان کو بھی خداوند عالم نے فراموش نہیں کیا اور انہیں بھی یاد رکھا، اور پیغمبر جیسے پیغمبر رحمت کو، نبی رحمت کو، امام رحمت کو خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ دنیا والوں کو، آنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، آدمیت و انسانیت و شرافت انسانی کو پیش نظر رکھنے والے انسانوں کو یہ بتا دیجئے، یہ سبق سکھا دیجئے کہ جو ماں باپ پیدا کرتے ہیں ان کا تو خیال ہے ہی اور رکھنا ہی چاہیے، لیکن جن ماں باپ نے پیدا تو کیا یا پیدا کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، باپ کے لیے اکثر ملتا ہے کہ شکم مادر میں بچہ ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، کوئی اور باپ بن کے پرورش بن کر رہا ہے، شکم مادر میں بچہ ہے، ماں گزر گئی، بچے کو آپریشن کر کے نکال لیا گیا، کسی اور ماں نے اس کی پرورش کی۔ ماں اور باپ تین ہو سکتے ہیں مگر والد اور والدہ ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ صلوات محمد۔ والد ہونا
बाप होना और है, वालिदा होना और है, माँ होना और है। माएँ कई हो सकती हैं, बाप कई हो सकते हैं, मगर वालिद एक होगा, वालिदा हमेशा एक होगी। खुदावंद आलम ने दोनों का ख्याल रखा। तो जब पालने वाले माँ बाप का इतना ख्याल अल्लाह ने रखा कि पैगंबर को हुक्म दे रहा है कि आप दुआ करिए परवरदिगार आलम से कि पालने वाले तू उसी तरह से इन दोनों पे रहम फरमा, मेहरबान रहना जिस तरह से वो दोनों मेरे ऊपर बचपन में मेहरबान रहे हैं। सलमान जब ऐसे माँ बाप के लिए जिन्होंने परवरिश कर दी, सिर्फ अल्लाह को इतना ख्याल है इनकी अजमत, इनकी शान और मंजिलत का, इनके फजीलत का, इनके फजाइल का, इनकी खिदमतों का, इनकी इज्जतों का, इनके एहतराम का, तो जिन माँ बाप के जरिए से दुनिया में आए हैं उनका कितना ख्याल रखेगा अल्लाह, है ना? दोनों में फर्क है ना? और फिर खास तौर से बापों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। माँ ने अगर बच्चों की सही तालीम और तरबियत और परवरिश की है, क्योंकि तारीफ ज्यादातर माँओं की होती है। अगर बच्चे समाज, सोसाइटी, मुआशरे में अच्छे साबित होते हैं, तो नेक साबित होते हैं, तो तारीफ बापों की कम होती है, वालिद की कम होती है, माँ की ज्यादा होती है। कि किस माँ ने परवान चढ़ाया है, किस शिकम मादर में इसकी परवरिश हुई है, किस आगोश मादर में इसकी परवरिश हुई है, किस तरबियत मादर ने इसे इस लायक बना दिया है कि आज समाज, सोसाइटी, मुआशरे वाले भी फख्र करते हैं, गांव वाले, महल्ले वाले भी फख्र करते हैं, क्या बच्चा हमारे हवाले किया है। सलवात पे मोहम्मद कितनी बेहतरीन बच्ची हमारे हवाले की है इसकी माँ ने परवरिश करके। समाज, सोसाइटी, मुआशरे वाले फख्र करते हैं, कौम मिल्लत वाले फख्र करते हैं, इलाके वाले फख्र करते हैं, माँ बाप फख्र करते हैं, कौम कबीले वाले, खानदान वाले कदर फख्र करते हैं, ननियाल वाले फख्र करते हैं, दरियाल वाले फख्र करते हैं, मैके वाले फख्र करते हैं, ससुराल वाले फख्र करते हैं। सलवात पे मोहम्मद। लिहाजा अगर माओ को अच्छा कहलवाना है तो अपने बच्चों बच्चियों को अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर माओ को अपनी तारीफ करवानी है तो अपने बच्चों और बच्चियों की बेहतरीन तालीम और तरबियत शिकम मादर से करनी होगी। सलवात पे मोहम्मद। बापों को कोई नहीं कहेगा, थोड़ा सा अमल दखल रहता है, हलाल हराम की कमाई का असर पड़ता है, जाए तो ना जाए की कमाई का असर पड़ता है, क्योंकि बापों के जरिए से वो हासिल होती है, वालिद के जरिए से हासिल होती है, मर्दों के जरिए से हासिल होती है, मगर ज्यादा हक माओ का है। आज बड़े बड़े उलमा की तारीख उठाकर आप देखिए तो माओ की तारीफ की गई है कि किस माँ के शिकम ये ज़र्फ बने थे इस आलिम दीन के लिए, कि इतने जबरदस्त आलिम दीन बने कि मासूमीन अहले बैत थार और अंबिया और औलिया की बात को छोड़िए, उनके जहन दिलो दिमाग को शिकम मादर से ऐसी तालीम और तरबियत मिली, आगोश मादर में इतनी बेहतरीन तालीम और तरबियत मिली, इतनी बेहतरीन तरबियत की माँ ने अपने उस मदरसे में, जो मदरसा आगोश मादर की शक्ल में मिला उसे, कि ऐसे ऐसे उलमा दुनिया में आए कि जिन्होंने अहले बैत तार के मिशन को हम तक पहुंचाकर आज हमें इंसानियत, आदमी को शरीयत और मजहब की बातें बता रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कलम की रोशनाई को अंबिया से बेहतर करार दिया गया, शुहदा के खून से बेहतर करार दिया गया। ये उन माओं की देन है। इसीलिए पैगंबर अकरम को ये हदीस में इरशाद फरमाना हुआ कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के पैर के नीचे है। वालिदा ने नहीं फरमाया,
ام کا لفظ استعمال فرمایا. جی ام کے معنی ماں. وہ ماں بھی ہے جس نے پیدا کیا ہے شکم مادر میں رکھ کر. وہ ماں بھی ہے جس نے پرورش کی ہے چاہے شکم مادر میں نہ رکھا ہو. جسمانی پرورش، بدنی پرورش کھلا پلا کے، پھر قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات سے، دین و مذہب و شریعت کی تعلیمات سے، اصول و فروع کی تعلیمات سے، حلال و حرام کی تعلیمات سے، واجبات و مستحبات کی تعلیمات سے، نجاسات و طہارت کی تعلیمات سے اس بچے کو اس لائق بنا کر ذہن و دماغ اور روح کی پرورش کی ہے. وہ بھی مراد ہے اسے، وہ بھی اس میں آ گئی، یعنی استاد کی حیثیت سے. اور ساس بھی آ گئی، اس لیے کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے. تو ہر ایک کے 3 باپ بھی ہیں اور 3 مائیں بھی ہیں. وہ مائیں جو تعلیم دیتی ہیں، وہ مائیں جو بیٹی حوالے کرتی ہیں، وہ مائیں جو شکم مادر میں آواز مادر میں تربیت مادر میں پروان چڑھا کر ہمارے حوالے کرتی ہیں، سماج سوسائٹی معاشرے کے حوالے کرتی ہیں. باپ بھی ہے، مگر خدا وند عالم کے پیغمبر نے باپوں کے لیے نہیں فرمایا کہ باپوں کے پیر کے نیچے جنت ہے. کیا فرمایا؟ ماؤں کے پیر کے نیچے ہے جنت. جس جنت کو خداوند عالم نے شاف محشر کے قدم مبارک کے نیچے نہیں رکھا، جس جنت کو، جس عظیم جنت و بہشت کو خدائے قادر مطلق نے مالک جنت و جہنم کے پیروں کے نیچے نہیں رکھا، جس بہشت کو، جنت کو، فردوس بری کو، بہشت کو، خلد بری کو جوانان جنت کے سرداروں کے پیر کے نیچے نہیں رکھا، اہل بیت اطہار کے پیروں کے نیچے نہیں رکھا، اس جنت کو اپنی اپنی ماؤں کے پیر کے نیچے رکھا. اتنی عظیم جنت، اتنی عظیم جنت کی انہی آیات و احادیث و روایات کی روشنی میں شاعر کو کہنا پڑا کہ ماں کے قدموں کے نشان ہیں جو دیے روشن ہیں، ماں کے قدموں کے نشان ہیں جو دیے روشن ہیں، غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی، غور سے دیکھ یہیں پر کہیں جنت ہوگی. جنت تحت اقدام الامہات، جنت اپنی اپنی ماؤں کے پیر کے نیچے ہے. تو کن ماؤں کے پیر کے نیچے ہے؟ یہ حدیث پیغمبر نے بیان فرمائی تو کن ماؤں کے درمیان بیان فرمائی، کن باپوں کے درمیان فرمائی؟ کفار و مشرکین و یہود و نصارہ، بے دین و بے عمل غیر مومن کے، غیر مومنہ کے درمیان بیان فرمائی. مومنہ ماں ہو، غیرت دار ماں ہو، پردے دار ماں ہو، خوددار ماں ہو، دیندار ماں ہو، پرہیزگار ماں ہو، عالمہ ماں ہو، باعمل ماں ہو. اتنی عظیم جنت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ تو تاکہ خطبائے بے عمل جو ہے ممبروں سے بانٹتے ہوئے پھرتے ہیں. صلوات بھائی محمد اتنی عظیم جنت کو خداوند عالم نے اپنی اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا. تو کیا بے دین ماؤں کے پیر کے نیچے، بے عمل ماؤں کے پیر کے نیچے، بے حیا بے شرم بے غیرت ماؤں کے پیر کے نیچے، غیر مومنہ ماؤں کے پیر کے نیچے، بے حجاب و بے پردہ ماؤں کے پیر کے نیچے جو خود جہنمی ہے تو کیا جنت لے جائیں گی؟ صلوات اللہ محمد محمد. جو مائیں جن کا قدم خود جہنم کے نچلے طبقے میں ہے، کیا ان ماؤں کے پیر کے نیچے جنت ہوگی جو خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے؟ بلکہ خود تو خود 2 4 10 کو لے کے جانے والی ہے جہنم میں. 2 4 10 کو نہیں بلکہ پورے سماج اور سوسائٹی معاشرے اور پوری قوم کو لے کے جانے والی ہے جہنم میں. کیا ان ماؤں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ اس عظیم جنت کو خداوند عالم نے اتنی سستی بنا کے ان ماؤں کے پیر کے نیچے نہیں رکھا ہے، بلکہ ان ماؤں کے پیر کے نیچے رکھا ہے جو مومنہ ہے، جو عالمہ ہے، جو مسلمہ ہے، جو نمازی روزے دار و پرہیزگار و پردے دار و غیرت دار و خوددار و پرہیزگار ہے. صلوات بھائی محمد
ये सस्ती जन्नत नहीं है जिसे हम बांटते फिरते हैं। बेअमल लोग जो खुद बेअमल हैं और बेअमली की दावत देते हैं, बेदीनी की दावत देते हैं, वो जन्नतें बांटते फिरते हैं। तेरी अजीम जन्नत खुदावंद आलम ने माओ के पैर के नीचे रखी है, तो यूं ही नहीं रखती है। जहन्नमी माओ के पैर के नीचे नहीं रखी है, जन्नती माओ के पैर के नीचे रखी है। इसलिए माओ को चाहिए कि पैगंबर ने अगर फरमा दिया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अगर फरमा दिया है, अल्लाह ने अगर फरमा दिया है, कुरान नातिक को सामित ने अगर फरमा दिया है, ऐलान व बयान फरमा दिया है, अहादीस और रवायात की रोशनी में माओ की अजमत को, कि माँ का एहतराम 3 बराबर है, मगर बाप की बेहतरामी न होने पाए। ऐसा नहीं कि अगर माओ का एहतराम 3 बराबर है तो बाप की बेहरमती होने लगे, बेइज्जती और जिल्लत रुसवाई और बेइज्जती करने लगे। नहीं कि नहीं, बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हलाल ग़िज़ाओं का बड़ा असर होता है, जायज़ ग़िज़ाओं का बड़ा असर होता है, पाकीज़ा ग़िज़ाओं का बड़ा असर होता है, और वो बाप ही के जरिए से फराहम होती है। सलवात है वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आलिम दीन थे, बाप का हुक्म हुआ, जाओ मिंबर पे समाज सोसाइटी मुआशरे वालों को कुछ समझाओ, नसीहत करो। बार बार मिंबर पे जा रहे हैं, उतर आ रहे हैं। बाप ने एक बार डांट के कहा, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कुछ समझाओ, तबलीग करो, पब्लिक समाज सोसाइटी मुआशरे की नसीहत करो। उलमा की पहचान बताई गई है दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में। उलमा की पहचान ये है कि ज़ुहद और अख्तियार करते हैं और मौइज़ा और नसीहत करते हैं, जन्नतें नहीं बांटते फिरते हैं। जो जन्नतें बांटते फिरते हैं वो जुहला होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें मिंबर पे लाया जाता है और जो जन्नतें बांटते हैं वो जुहला होते हैं। बेअमली और बेदीनी के माहौल में बना के जो जन्नतें बांटते हैं वो जुहला होते हैं। और बाअमल और दीनदार और परहेजगार और अज़ादार वाक़ई और सच्चा मातमदार बना के जो जन्नतें बांटते हैं वो उलमाए बाअमल होते हैं। जन्नत है हमारी मीनार, मगर दीदारों के लिए, परहेजगारों के लिए, खुददारों के लिए, बाअमल दीदारों के लिए, हकीकी अज़ादारों मातमदारों के लिए, व सच्चे और वाकई शिया यानी हैदर करार के लिए, सबके लिए नहीं। और अगर यही काफी होता, अगर यही काफी होता जो हम समझ बैठे हैं, जो हमें समझा दिया गया है, तो फिर सभी जन्नत में चले जाएंगे। फिर तो जहन्नम को खर्च ही नहीं होना चाहिए था। है? ये रमजान बुलाया ना, रमजान बख्शिश का महीना था ना, मग़फ़िरत का महीना था ना। और रमजान के रोजे के बाद हमारा कदम बेहतर से बेहतर होना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी अगर हमारा कदम पहले ही जैसा उठ रहा है तो क्या रमजान के रोजे काबिल कबूल हो गए? क्या कहना, वाह। है? अगर हमारी बेदीनी और बेअमली और गुनाहगारी का वही आलम रह गया है जो रमजान के पहले था, और रमजान में तो इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन कुरान की मारूफ आयत है, जो जनाब हाबील के कत्ल के बाद काबिल की जब कुर्बानी रद्द हुई तो खुदावंद आलम ने ऐलान फरमाया कि मुत्तक़ीन की कुर्बानी और मुत्तक़ीन का अमल काबिल कबूल होता है, गैर मुत्तक़ी का कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। और मुत्तक़ी की पहचान क्या है? परहेजगार की पहचान क्या है? परहेजगार माँ हो या परहेजगार बाप हो, या परहेजगार बच्चे हो या बच्चियां हो, उनकी पहचान क्या है? और पहचानें तो छुपी रहती हैं, मगर एक पहचान मर्दों से मुताल्लिक है जो जाहिर होती रहती है कि परहेजगार हैं, मुत्तक़ी हैं या बेदीन और बेअमल हैं, रहमान के बंदे या शैतान के बंदे। एक मर्दों से मुताल्लिक है और एक औरतों से मुताल्लिक है, जो अलल ऐलान जाहिर होती रहती है। मर्दों की पहचान है दाढ़ी रखना, क्या है? दाढ़ी रखना। औरतों की पहचान है पर्दे में रहना। ये एक ऐसी पहचान इस्लाम और कुरान नातिक को साबित ने बताई है कि बेपर्दगी हराम है, पर्दा वाजिब है। नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी कोई नहीं जानता, मगर बेपर्दा अगर कोई टहल रही है तो सब देख रहे हैं वो बेपर्दा टहल रही है, वो हराम कर रही है, गुनाहगार है वो।
पर्दा वाजिब है छोड़ रही है, और बेपर्दगी हराम है वो कर रही है, समाज सोसाइटी मुआशरे को खराब कर रही है। किसी को हक नहीं है खराब करने का समाज सोसाइटी मुआशरे को। कितने जवान नौजवान बहक रहे बेहया बेशर्म बेगैरत पर्दा औरतों को देखकर, पर्दा लड़कियों को देखकर। ये गुनाह अलल ऐलान हो रहा है। अगर कोई ये गुनाह कर रहा है तो उसकी गिरफ्त तक करता जाएगा। सलात हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दाढ़ी मुड़ाने वाले मर्द की गिबत जायज है दाढ़ी मुड़ाने के मसले में। क्यों? इसलिए कोई हराम काम अलल ऐलान कर रहा है, गुनाह अलल ऐलान कर रहा है। मुसलमान की पहचान अगर से आज नहीं रह गई है, मगर अल्लाह रसूल इस्लाम और कुरान नातिक की रोशनी में बहरहाल मुसलमान की पहचान थी और है और रहेगी। मौला के चाहने वालों की, परहेजगारों की, दीदारों की पहचान थी और है रहेगी। वो दाढ़ी रख रहे हैं तो किसी और वजह से रख रहे हैं। उनकी बच्चियां अगर पर्दा कर रही हैं, ढांटे बांध के चल रही हैं तो किसी और वजह से कर रही हैं। लेकिन हमारी बच्चियों को पर्दा करना चाहिए, हमारे बच्चों को दाढ़ी रखना चाहिए, तो ये सोच कर रखना चाहिए कि ये इस्लाम और कुरान नातिक को साबित और अल्लाह रसूल का पैगाम है। सल्लल्लाहु अलैहि कुरान नातिक को साबित खुश होते हैं। इमाम ज़माना सल्लल्लाहु पर्दे से खुश होते हैं, दाढ़ी से खुश होते हैं। ये सोच कर करना चाहिए। जरा उनके काबिल कबूल नहीं होंगे रोजे जो आज भी दाढ़ी मुड़ा रहे हैं। उनके रोजे काबिल कबूल नहीं होंगे जो आज भी बेपर्दा टहल नहीं होंगी। उन्हीं के काबिल कबूल होंगे चाहे कुछ भी कर डाले, कमा लगा के अपने को मार डाले, जंजीरें लगाते लगाते खत्म हो जाए। मगर याद रखिएगा कल बरोगे महशर वो शफाअत देने जब जाएंगे तो कहेंगे जाओ शैतानों के जैसा चेहरा बनाते थे तुम लोग, दुनिया के हीरो है तुम्हारे आइडियल देना, जाओ उन्हीं से ले लो जन्नत। जन्नत तो हमारी मिराज है ना, हम जिसे चाहेंगे ले जाएंगे। तुम लोग जिंदगी भर शैतानों के मिशन को मजबूत करते रहे, हमारे मिशन को ठेस पहुंचाते रहे, हमें नाराज करते रहे, हमें रुलाते रहे, हमें नाराज करते रहे, खुदावंदे मुताल को नाराज करते रहे, शैतान को शैतानी मिशन को खुश करते रहे, मजबूर करते रहे। आए हो जन्नत हमसे लेने के लिए, जाओ इसलिए जाके जो चाहते थे करते थे ना। जब समझाया जाता था तो तुम लोग को तो जन्नत सस्ते में मिल रही थी, बट नहीं थी, इसलिए तुम लोग सोचते थे अरे बोली बोली चिल्लाया करते हैं ऐसे ही। तो चिल्लाने तो हम ये चिल्लाया करते थे, चिल्लाते चिल्लाते चले गए बेचारे, कत्ल भी हो गए, शहीद भी हो गए। मासूम हमारे किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया, यही समझाने बुझाने की वजह से उनका कत्ल हुआ, उनकी शहादत नसीब हुई। मोहम्मद और सबसे ज्यादा के उनके मिशन पर चलने वाले उलमाए बाअमल के भी दुश्मन इस ज़माने ग़ैबत में वही लोग हैं जो बेदीन है, जो बेहया बेशर्म है, बेगैरत है, गुनाहगार है। वही सबसे ज्यादा उनसे दुश्मनी भी रखते हैं, वही सबसे ज्यादा उनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं और सच्चे अच्छे मौला और अहलदार के चाहने वाले परहेजगार और दीदार होते हैं, वही उनको चाहते भी हैं, वही उनसे दोस्ती भी रखते हैं। और उन्हीं की दोस्ती और मोहब्बत चाहिए भी जो अल्लाह वाले हैं। देखा आलिम दीन बार बार जा रहे हैं और गुम्बद से उतर आ रहे हैं, लेकिन माँ की दूध की तासीर और बात के हलाल और जायज और पाक और पाकीज़ा और रिज़ा और रोजी का असर क्या होता है। शिकमे मादर की तरबियत होती है। बार बार उम्र के नीचे उतर आ रहे हैं। बाप ने मगर डांट के कहा बेटा मैं कह रहा हूँ तुम नसीहत करो, वाज नसीहत करो, कुछ समझाओ पब्लिक समाज को, साढ़े मुआशरे को, जन्नतें मत बांटो, बेवकूफ न बनाओ, गुमराह न करो लोगों को। ये मोहब्बत नहीं नफरत है, ये दोस्ती नहीं दुश्मनी है। गुनाह करना, बेअमल बनाना, बेदीन बनाना। तो बेटा एक बार कहता है बाबा मैं किसको समझाऊं, मुझे तो सब जानवर नजर आ रहे हैं। यानी माँ ने इतनी पाको पाकीज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करवाई शिकमे मादर से। यानी जब बच्चा शिकमे मादर में था तो बगैर वजू के कभी नहीं रही, हमेशा कुरान की तिलावतें करती रही, हमेशा नमाज और रोजा से रही, हमेशा बावजू रही, हमेशा दुआ और तिलावत और मुनाजात में मशगूल रही, हमेशा तस्बीह और तहलील और तकबीर और तमजीद परवरदिगार आलम में मशगूल रही, हमेशा तौबा और इस्तिग़फ़ार और दुरूद और सलाम में मशगूल रही। तो वो बच्चा पैदा होने वाला कैसा होगा। अब बाप ने भी बड़ी मेहनत और ज़हमत और मशक्क़त करके हलाल और जायज़ पाक और पाकीज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करता रहा, फराहम करता रहा, तो उस बच्चे को खुदावंद आलम ने ऐसा बना दिया कि वो लोगों की हकीकतों को जानने लगा।
ये लोग हैं क्या आखिर में? अहले मासूमीन, अहले बैत अतार की अजमत बहुत बहुत बुलंद है। उनके सच्चे और अच्छे मानने वाले भी इसी दुनिया में ऐसे हैं जो हमारी हकीकतों को जानते हैं कि हम क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे। बाबा सब जानवर नजर आ रहे हैं, मैं किसे समझाऊं? तो फिर बाप ने जाके माँ से कहा कि अब थोड़ा कुछ मशकूक चीजें भी इसे दो ताकि इन्हीं जानवरों को इंसान बनाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले देखिए, पैगंबर भी जब आए थे दौरे जाहिलियत में, कुफ्फार और मुशरिकीन ने मक्का अरब में सब जाहिल और दरिंदे और जानवर ही तो थे, हैवान ही तो थे, जंगली तो थे। आज भी वो जंगली है कुछ लोग, मगर उन्हीं में से इंसान बनकर सलमान बिन अहल बैत बन गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद उन्हीं जंगलियों के दरमियान से निकलकर सलमानो पूदर और मिक़दादो कंबर जैसे बने, जनाबे फिद्दा जैसी कनीजें बनी, उन्हीं जंगलियों में से निकल के तो बने। तो उन्हीं जानवरों को समझा समझा के पैगंबर ने इस लायक बना दिया। तब ये किसका असर हुआ? शिकम मादर, आगोश मादर, तरबियत मादर, शीर मादर का असर हुआ। शीर मादर का इतना असर होता है कि जनाबे मोहम्मद हनफिया जैसे बेटे हैं मौलाए कायनात के, और जंग सिफ़ीन है। कितना असर होता है मोमिना माँ के शिकम का, इतना असर होता है मोमिना माँ के दूध और शीर का, इतना असर होता है मोमिना माँ की तरबियत का। इसीलिए मौलाए कायनात ने जनाब अब्बास अलमदार के लिए बा अमल दीदार और परहेजगार और शुजाअत और बहादुर खानदान की लड़की तलाश करने के लिए जनाब अकील को फरमाया था, और इसमें जनाब अकील की अजमत को साबित करना चाहा था। वरना क्या मौलाए कायनात नहीं जानते थे? जिनके घर की सवारियां घोड़े अपने आका और मौला की मक्तल की खाक को जानते हो, क्या वो आका और मौला जिसकी तलवार जो है 7 पुश्तों को नस्लों को देखकर चलती हो, वो आका और मौला के इल्म का क्या आलम होगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जिसके हाथ में आने वाली जुल्फ़कार नस्लों को पहचानती हो, पुश्तों को पहचानती हो, जिसके घर की सवारी और जानवर जो है आका मौला के मक्तल की खाक को पहचानते हो, जानवरों का ये आलम हो, उस आका और मौला का क्या आलम होगा? उसके इल्म मारिफत का क्या आलम होगा? उसके इल्म फल का क्या आलम होगा? जिसके घर के कनीज और गुलाम ऐसे हो। तो जनाब मोहम्मद हनफिया जंग सिफ़ीन में मौला कायनात भेजना चाह रहे, जाओ मोहम्मद हनफिया, दुश्मनों की ताकत जलगार देकर जनाब मोहम्मद हनफिया एक बतवा नुफ़े इब्तिदाई गालिब आता है तो कदम आगे बढ़ते हैं, मगर जब शीर मादर गालिब आ जाता है तो कदम रुक जाते हैं। जी, शीर मादर का असर इतना होता है। और जनाब अब्बास अलमदार एक मर्तबा मौला ने ललकारा, मेरे बेटे अब्बास, मौला कायनात के जैसे ही इशारा पाते फौरन फड़फड़ाते हुए घुसते चले जाते हैं और नकाब चेहरे पे डाल के गए। उधर से दुश्मनों के दरमियान से मजमे से अल अमान अल हफीज की आवाज के साथ साथ ये आवाज भी बुलंद होने लगी कि अली मैदान में आ गए खुद, यानी कि बिल्कुल वही अंदाज, वही कार, वही रफ्तार, वही तेजी, वही शुजाअत, वही बहादुरी कि दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो गया कि अली खुद मैदान जंग में आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले को वापस बुलाकर जब चेहरे से नकाब पलट ली तो कहा कि देख लो, मैं अली नहीं हूँ, बल्कि मैं हैदर कररार नहीं हूँ, बल्कि सानी हैदर अब्बास अलमदार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले नुफ़े भी और शीर मादर भी दोनों ने असर दिखाया। शीर मादर का इतना असर होता है, इसीलिए मोमिना माँ लाना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए दीदार और परहेजगार माँ की तलाश करना चाहिए। बहादुर और शुजा खानदान को देखना चाहिए, दौलत नहीं देखना चाहिए, खूबसूरती नहीं देखना चाहिए, ये में पास नहीं देखना चाहिए, शहरी और देहाती नहीं देखना चाहिए, हत्ता सैयद और गैर सैयद नहीं देखना चाहिए। ईमान और इस्लाम और किरदारों, इल्म, अमल और अखलाक देखना चाहिए। अगर ये चीज है तो उसे अपने घर की बहू बनाया जा सकता है, अपने घर का दामाद बनाया जा सकता है, अपनी बेटी दी जा सकती है, अपनी बेटी ली और बेटा दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो दुनिया के स्टैंडर्ड पर चाहे कितना भी आगे निकल जाए, वो हमारे घर की न बहू बनने के लायक है, न हमारे घर का दामाद बनने के लायक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर चाहते हैं कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु के सिपाही बनकर आए, अगर चाहते हैं कि कनीदान हज़रत ज़हरा बनकर आए, सानी ज़हरा बनकर आए, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए मोमिना माँ तलाश करें, मोमिन बाप तलाश करें। और ये पहले से देखना पड़ेगा। दुनियावी स्टैंडर्ड को छोड़िए और आनी इस्लामी स्टैंडर्ड को अपनाइए।
नहीं तो जमाना हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमको अपने घरों को भी छोड़ना पड़ जाएगा जी। और यही वजह है कि आज हमारी दीदारी की इतनी कमजोरी, दीदारी में इतनी कमजोरी पाई जा रही है, तालीमात में इतनी कमजोरी पाई जा रही है कि आज हर इंसान, सारी दुनिया हमसे खेलना चाह रही है, हमारा इस्तेमाल करना चाह रही है। और जब दीदार तबका बेदार करना चाहता है तो उसी को लोग अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। अजान ग्रामी जदा माओ का बड़ा अमल दखल, इसीलिए जब इमाम मासूम से पूछा गया कि माँ की अजमत क्या है, माँ की खिदमत क्या है, तो इमाम मासूम फरमाते हैं कि माँ बाप की अजमत को पेश नजर रखते हुए 3 बार सवाल किया गया और 3 बार इमाम ने फरमाया कि माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। जब चौथी बार सवाल किया तो कहा कि बाप की खिदमत करो, यानी 3 गुना माँ की खिदमत, इज्जत एहतराम किया जाए और 1 गुना बाप का किया जाए। क्यों? इसमें बापों को, मर्दों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें राज है, हिकमत है, फलसफा है। माओ की नजाकत जिस्मानी बदनी को पेश नजर रखते हुए खुदावंद मुताल ने, उनकी जहमतों को पेश नजर रखते हुए खुदावंद मुताल ने पैगंबर अकरम ने अंबिया और इस्लाम कुरान नाज़िल को सामित ने उनका 3 गुना एहतराम करने का हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए कि वो शिकम मादर में जो रख के परवान चढ़ाती हैं वही माए हैं कि जब बच्चा खेलियां लेता है, खेलता है, उछलता है, कूदता है, हाथ पैर मारता है, तो माए अगर मोहब्बत मादरी अल्लाह की तरफ से न डाली जाए तो मुश्किल में मादर में बच्चे को दबा के माए मार डालें। मगर ये खुदावंद आलम की मोहब्बतों की एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा साया होता है कि बजाय दर्द और तकलीफ के एहसास के बाद दबा के मार डालने के बजाय बच्चों को अपने शिकम मादर में रखकर, शिकम मादर में रखकर अपने शिकम को सहला के दुआ देती हुई नजर आती है। हमारा बच्चा सही सालिम है, तभी तो हटकेलियां ले रहा है, तभी तो हाथ पैर चला रहा है, दुआएं देती है, अपने दर्द को, तकलीफ को भूल जाती है। किसी ने पूछा माँ के खिदमत के सिलसिले में, तो मौला ने फरमाया कि देखो माँ बाप की खिदमत तुमको अगर पुरानी उम्र दे दी जाए और इज्जत और एहतराम के साथ, खंदा पेशानी के साथ, सरे मुबारक के माँ बाप को दानों पे रखकर लुक़मे तोड़ तोड़ कर अगर खिलाया जाए तब भी खास तौर से माँ के एक हल्के से दर्द का बदला नहीं दे सकते। और 9 महीने में नहीं मालूम 24 घंटे में कितनी मरतबा दर्द होता होगा। फिर विलादत के वक्त, फिर आगोश तरफ मादर में आने के बाद दूध पिलाने वाली मुद्दत, ये सारी मुद्दतों को पेश नजर रखते हुए अगर देखा जाए तो माँ बाप की खिदमत का, माँ बाप के ज़हमत और मेहनत और मशक्कत का तुम तूलानी उम्र भी पा जाओ और खंदा पेशानी के साथ अगर उनकी इज्जत एहतराम और खिदमत में अगर वक्त लगाओ तो तुम हल्के से एक दर्द का बदला नहीं चुका सकते। और सारी जहमतें तो अलग हैं। और एक चीज और ध्यान में रखें कि माँ बाप जब खिदमत करते हैं, आज अगर किसी को तौफीक हासिल भी हो जाती है तो सोचते हैं कि अरे चंद रोज के मेहमान तो हैं, फिर इसके बाद कब्र के हवाले करना है ना। अगर तौफीक हो भी गई तब भी, लेकिन अक्सर बेशतर नालायकी का ये आलम है, दुनियावी तालीम और तरबियत का ये आलम है, शैतानी तालीम और तरबियत का वो आलम है कि माँ बाप की इज्जत और एहतराम और खिदमत को छोड़िए, उनकी नाकदरी हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें निकाला जाता है, उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। समाज सोसाइटी मुआशरा इतना खराब, इतना बिगड़ चुका है कि माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया जाता है, माँ बाप की तौहीन की जाती है। खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे हालात में माँ बाप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें थोड़ा सा माँ बाप का भी दीनी तालीम में अगर दिलाए बचपने से, लेकिन बच्चा ये कहकर कल बारगाह खुदा में अपना शाना खाली नहीं कर सकता कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं। ये मजलिस हुसैन है, ये फर्श अदा है, सबसे बड़ा मदरसा है, सबसे बड़ी दरगाह है। काश मिंबर पर उन्हें लाया जाए कि जो कुछ सिखा के जाए, माँ बाप के साथ क्या होना चाहिए,
اللہ کا حق کیا ہے, انبیاء کا حق کیا ہے, ماں باپ کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, عورتوں کا حق کیا ہے, بیویوں کا حق کیا ہے, اولادوں کا حق کیا ہے, مردوں کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے, بچیوں کا حق کیا ہے, مسلموں کا حق کیا ہے, غیر مسلموں کا حق کیا ہے, حتیٰ جانوروں کا حقوق ہمارے اوپر کیا ہے. جس اسلام میں پروردگار عالم نے بے نیاز دین, پسندیدہ ترین دین بنا کر مجھے بھیجا, جس خداوند عالم نے بے نیاز, خدا نے بے نیاز کتاب بھیجی, جس خداوند عالم نے بے نیاز انبیاء اولیاء بھیجے, بے نیاز معصومین اہل بیت اطہار بھیجے, اے کاش ہم نے ان کی تعلیمات سیکھی ہوتی, ان کے اخلاق سیکھے ہوتے اور اس پر عمل کیا ہوتا, تو آج ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن چکے ہوتے. آج سماج سوسائٹی معاشرے میں ماں باپ کی بے احترامی نہ ہوتی, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا. اس اسلام و قرآن ناطق و صامت نے حتیٰ جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں. تو جس اسلام و قرآن ناطق و صامت نے جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں, کیا وہ اللہ رسول, انبیاء اولیاء, ماں باپ, استاد اور پڑوسیوں کے, مسلم اور غیر مسلم اور سنی اور شیعہ اور انسانوں کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے؟ اے کاش ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں سیکھا ہوتا اور لوگوں تک پہنچایا ہوتا. اے کاش قرآن کی تعلیمات کو, اے کاش قرآن کے اخلاق کو ہم نے خود سمجھا ہوتا اور دوسروں کو سمجھایا ہوتا, تو آج قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی, آج اذان کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی. صلوات پہ ہمارے محمد والے محمد محمد والے محمد. ہمارے اپنے اور پرائے آج اسلام و قرآن کے اوپر آج نہ آتی, آج نہ اٹھاتے, آوازیں بلند نہ کرتے. اپنے اور پرائے ہم نے اسلام و قرآن کی تعلیمات کو نہ پہنچایا اور نہ خود سمجھا اور نہ خود سیکھا. ہم تو قرآن کی ریڈنگ نہیں لگا پاتے, تلاوت نہیں کر پاتے. وہ جو دستور زندگی تھا, وہ جو دستور حیات بنا کے بھیجا تھا, جو ترقی, سربلندی, کامیابی کا سر چشمہ تھا, منبع تھا, خزانہ تھا, قرآن, جس سے دنیا نے ترقی کر کے آج اپنے کو سائنس اور ٹیکنالوجی والا سمجھ لیا ہے. جس قرآن کے ذریعے سے, جس نہج البلاغہ کے ذریعے سے, جن معصومین کے کلام کی روشنی میں دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھی, ہمارے اہل معصوم کے شاگردوں کے ذریعے سے, کے چاہنے والے, ماننے والے پردھانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جن کے پیچھے دنیا کو بھاگنا چاہیے, جن کے پیچھے دنیا کو سجدہ کرنا چاہیے, جن کے قدموں پہ دنیا کو سجدہ کرنا چاہیے. کل کیا جناب سلمان بودر و مقداد و کمبر نے کسی کے سامنے سجدہ کیا تھا یا دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی؟ اے معصومین کے ایسے شاگرد تھے کہ دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی, ان کے علم و دانش کا لوہا مانتی تھی, سکہ مانتی تھی. جناب جابر بن حیان سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھنے والے چھٹے امام کے شاگرد, روم کا بادشاہ ہیرے دوارا کا صندوق لے کر بھیج رہا ہے کہ ہمیں شاگردوں میں قبول کر لیا جائے, ہمارا استاد بن جائے, اور یہ مسلمان قید میں رکھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے, کیا کیا جائے؟ انہیں لوگوں کو مار ڈالا جو پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت باپ تھے اور ہیں اور رہیں گے. تو اس امت کے باپ ہی کو مسجد کوفہ میں حالت نماز میں, حال میں سجدہ میں مار ڈالا. مسلمانوں نے مارا نا, یہودیوں نے نہیں مارا, عیسائیوں نے نہیں مارا, بت پرستوں نے نہیں مارا, غیر مسلموں نے نہیں مارا, مسجد میں مسلمانوں نے مارا, حالت نماز میں مسلمان نے مارا, عالم سجدہ میں مسلمان نے مارا. مسلمان کی تاریخ آج خون سے بھری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج ایکشن ریئیکشن ہو رہا ہے. سب یہ تو حق ہی نہیں کسی کو ظالم کہنے کا. یہ خود اتنے ظالم رہے ہیں کہ جن لوگوں سے اسلام سیکھا, جن لوگوں سے علم و دانش سیکھا, جن لوگوں سے قرآن سیکھا, جن لوگوں سے اذان سیکھی, جن لوگوں سے کلمہ پڑھا, گھس بیٹھی کر کے انہیں کے دشمن ہو گئے, انہیں سے نفرت کرنے لگے اور انہیں کو قتل کر دیا, انہیں کو شہید کر دیا. کاش ہم نے اسلام و قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا اور سمجھایا ہوتا لوگوں تک, تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی, قرآن والی ہوتی, اذان والی ہوتی. مگر جن لوگوں نے کردار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا, اس امت کے باپ تھے. کاش اس باپ کی عظمت اور شان و منزلت کو دنیا نے سمجھا ہوتا اور باقی رہنے دیا ہوتا. کاش جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جیسی ماں کی قدر کی گئی ہوتی. محمد والے محمد. وہ ام الائمہ ہیں, ائمہ کی ماں ہے. آج جناب خدیجہ کی عظمت کو سمجھا گیا ہوتا, جو ام الائمہ ہیں, حق
हकीकत में उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा है। तो क्या इस हदीस और इन आयतों की रोशनी में जनाब खदीजा का कोई हक नहीं है? जनाब फातिमा ज़हरा का कोई हक नहीं है? मौलाए कायनात का कोई हक नहीं है? जो सबके बाप है, जो उम्मत के बाप है, रसूल इस्लाम का हक नहीं था? जो उम्मत के बाप थे और हैं, फातिमा ज़हरा का हक नहीं था? जो अइम्मा की माँ है, जनाब खदीजा का हक नहीं था? जो उम्मत की माँ, मोमिनीन की माँ, की माँ, अइम्मा की माँ, मासूम इमामों की माँ है, जिस खुदावंद आलम ने आम माँ बाप की इज्जत और एहतराम के लिए फरमाया, ए पैगंबर, जनाब फातिमा बिन्त असद ने आपकी तालीम आपकी तरबियत और परवरिश की है, जनाब अबू तालिब ने आपकी परवरिश की है, तो आप भी इनके सिलसिले में दुआ फरमाइए। ये वालिदैन नहीं थे पैगंबर अकरम के, मगर माँ बाप की हैसियत से जनाब पैगंबर अकरम को परवान चढ़ाया। अपनी औलादों को कुर्बान करते रहे, बिस्तर बदलते रहे कि मेरी औलादें कुर्बान हो जाए मगर पैगंबर बच जाए। फिर के जनाब अबू तालिब। तो वालिदैन का हक क्या है हमारी गर्दन पर? काश हमने कभी सोचा और समझा होता। वालिदैन के बहुत ज्यादा हक हैं। एक वाकया तुझे सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरह से वालिदैन की खिदमत के तुफैल में एक बेटे को सिला मिलता है। माँ बाप ज़ियारत के लिए चले, ज़ियारतें सरबराह मोहल्ला, सवारी रात में जवाब दे गई। बेटा है, माँ बाप को ज़ियारत के लिए लेके जा रहा है। सवारी ने जब जवाब दे दिया तो बेटे ने माँ बाप को सोचा पहुंचाना तो है ही नहीं ज़ियारत के लिए। ये तजुर्बा नासिर को भी हुआ है। अपनी वालिदा के तुफैल में जैसी ज़ियारत नसीब हुई थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की, वैसी ज़ियारत कभी नसीब ही नहीं। 16 साल की उम्र में ईरान में रहे। मोहम्मद वैसी ज़ियारत नसीब नहीं पहुंचा पाते हम लोग घंटों खड़े रहने के बाद, मगर वालिदा के तुफैल में उनके सदक़े में ऐसी ज़ियारत नसीब हुई कि जैसी ना नसीब हुई थी, ना हुई है, ना होगी अब कभी। इसलिए वहाँ बहुत इल्ज़ाम रहता है। चला बेटा, माँ बाप दो हैं और दोनों को पहुंचाना है। घोड़ा तो है नहीं, सवारी तो है नहीं, बेटा है, इंसान है। कभी माँ को ले जाके कुछ दूर छोड़ता है, वहां बैठा के आता है, फिर बाप को लेके जाता है, फिर बाप को कुछ दूर लेके जाता है, फिर माँ को छोड़ता है, फिर वहां के बारी बारी करते करते आखिर इंसान ही तो था, वो भी जवाब दे गया। मगर माँ बाप को दरवाजे तक पहुंचा के ही छोड़ा, और दरवाजे पर पहुंचाने के बाद माँ बाप को वहीं निढाल होकर गिर पड़ा और वहीं से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। दरी के पास एक आलिम दीन थे जो ज़ियारत में मशगूल थे, वहां से उन्होंने जवाब सलाम सुना इमाम का। उन्होंने देखा किसको हमारे इमाम जवाब सलाम दे रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं आता है? आता है, जवाब सलाम तो वाजिब है ना। माँ बाप की अजमत को देखिए कि इस माँ बाप की अजमत के तुफैल में, खिदमत के तुफैल में उस बेटे को मौला जवाब सलाम के लायक ही नहीं जो समझते हैं। जवाब सलाम तो हमें भी देते हैं, मगर हमारे कान में इतनी आवाजें भरी हुई कि सुन नहीं पाते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते हैं ना सलाम। ज़ियारत आशुरा, ज़ियारत वारसा, हर नमाज के बाद जिसे तौफीक हो जाती है नमाज की, वही ज़ियारत पढ़ पाता है अपने इमाम की, वही सलाम कर पाता है अपने इमाम को। जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसे सलाम की तौफीक ही कहाँ हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह हम कहते हैं तो जवाब सलाम वाजिब है। जिनके यहाँ से वाजिब और मुस्तहब का रवाज चला हो, क्या वो जवाब सलाम नहीं देंगे? उनके लिए वाजिब नहीं है क्या? देते हैं, मगर हमारे कान गीबत, चुगलखोरी, तोहमत, इल्जाम, बोहतान, नाच, गाने, डांस, बाजों की आवाजों से इतने भरे हुए हैं कि उन आवाजों, इस कान में नूरानी आवाजें कहाँ से आ पाए? जो शैतानी आवाजों से भरे हुए कान हैं, जो शैतानी आवाजों से भरे हुए कान है, उस कान में नूरानी कलाम, नूरानी आवाजें कहाँ से आ पाए? जवाब सलाम को आता है, हम सुन नहीं पाते। दूर तक देखा दरवाजे पर एक शख्स पड़ा हुआ रिंधाल। पहुंचे और पहुंचने के बाद उससे पूछते भाई आखिर तेरा कौन सा ऐसा अमल है
کہ ہمارے امام نے مجھے جواب سلام دیا اور اس جواب سلام کو میں نے بھی سنا. آخر کیا کرتا ہے تو؟ کون سا ایسا بہترین عمل ہے تیرا کہ جس کی وجہ سے ہمارا امام معصوم جواب سلام دے اور ہم سنے؟ تو ماں باپ کی طرف اشارہ کیا کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے اور کچھ نہیں. نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں, روزے تو سبھی رکھتے ہیں, واجبات مستحبات کی پابندی تو سبھی کرتے ہیں. حرام سے بچنے کی توفیق ہو جائے. جو سب سے بڑا گناہ ہے داڑھی مڈانا اور بے پردگی, کاش ہم اس سے بچنے لگے. بے پردہ عورت, بے پردہ لڑکی اگر بے پردگی کے ساتھ پڑھائی کر رہی تو پڑھائی بھی حرام ہے. جائز اور واجب و مستحب تھی نہیں. اور اگر اس پڑھائی کے بعد اگر کمائی کر رہی بے پردگی کے ساتھ, وہ کمائی بھی حرام و ناجائز ہے, نجس ہے وہ. اور کسی طرح اگر مجبور ہونا پڑے داڑھی مڈا کے آؤ, تو اگر حرام کرنے کو مجبور کیا جائے تو وہ کمائی بھی حرام ہے. مردوں کے لیے بھی سن لیجئے, داڑھی مڈانے کی اجرت لینا بھی اور اجرت دینا بھی دونوں حرام ہے جی. اور ایسا گناہ ہے کہ جو علن اعلان ہو رہا ہے. ہمارے امام گریہ فرماتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں, ہاں تعجب میں جب پڑھا ہو, جب تعجب میں پڑھ گئے تو مسکرا کے وہ نڈھال جو گیا ہوا تھا چوکھٹ پہ مولا کے, مولا ماں باپ کو تو پہنچا دیا مگر خود میں طاقت نہیں رہ گئی کہ اپنے قدموں سے چل کر آپ کی زری کی زیارت کے لیے آؤں, سلام کے لیے آؤں, بوسہ لینے کے لیے آؤں, مگر مولا ہمارا سلام یہیں سے قبول فرما لیجیے. تو مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ مجھے میرے آقا نے, میرے مولا نے جواب سلام یہاں سے دیا, میں اپنے وطن سے, اپنے گاؤں سے, اپنے گھر سے بھی جب سلام کرتا ہوں تو میرے آقا میرے مولا کا جواب سلام مجھے وہاں بھی سنائی دیتا ہے. صلوات اللہ محمد زری کے پاس ہوں, سامنے موجود ہوں, دروازے پر ہوں, چوکھٹ پہ ہوں, مگر انہیں ماں باپ کی خدمت کے سلے میں ان کے صدقے میں, ان کے تو خیر میں میں جواب سلام آقا و مولا اپنے گاؤں, اپنے وطن, اپنے گھر سے بھی سنتا ہوں. جی یہ ہے عظمت ماں باپ کی. لہذا گھوڑکیوں میں نہیں, ڈانٹ پھٹکار کے نہیں کہ چند روز کے مہمان ان کی خدمت کر لو. اب اس کے بعد تو سب کچھ ہماری ہے, زمین جائیداد پراپرٹی کی لالچ میں بھی کیا جاتا ہے. کہیں شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ زمین جائیداد پراپرٹی ہو تبھی ان کی خدمت کرو. کچھ بھی نہ ہو, حتیٰ مکان بھی نہ بنایا ہو, زمین جائیداد اور پراپرٹی اور بینک بیلنس اور گاڑی اور دکان اور کاروبار تو بہت دور کی بات ہے. حلال اور جائز طریقے سے صرف تمہاری پرورش کر دی ہے, چاہے سال بھر, چاہے 1 مہینہ, چاہے 2 مہینہ, چاہے 1 دن, تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں, والدین بنے ہیں. ان کی عزت و احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آنے پائے. یہاں تک کہ اگر بھرے مجمع میں شوق پدری اور مادری دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہمارا بچہ کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے, اگر بھرے مجمع میں ایک چانٹا مار دیں تو بجائے اس سے کہ بچے ناراض ہو, تعارف کرائیں, اور تعارف کرانے کے بعد بہت بڑے عہدے پر پہنچ گئے, بہت بڑی کرسی, بہت اونچی کرسی مل گئی, شرمندہ نہ ہو بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھالتے ہوئے, ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے پورے مجمع سے تعارف کرائیں کہ انہیں ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار اور مار نے تو مجھے منزل تک پہنچایا ہے. صلوات اللہ محمد. اگر یہ ہمارے والدین اور ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار اور یہ مار نہ ہوتی تو آج یہ کرسی نہ ہوتی, یہ عہدہ نہ ہوتا, یہ ذمہ داری نہ ہوتی. یہ جو کچھ بھی ملا ہے سب انہیں کا صدقہ ہے, انہیں ڈانٹ پھٹکار اور مار کا صدقہ ہے جو ہمیں ملا ہے. لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے, خندہ پیش آنے کے تعارف کرایا جائے فخر کے ساتھ. یہی ہمارے ماں باپ ہیں, یہ ہمارے ماں باپ ہیں. گنوار ہے, دیہاتی ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے, انسلٹ ہو رہی ہے تو تعارف کرانے میں نہیں, انسلٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تعارف کرانا چاہیے. ماں باپ اس باعظمت شخصیت کا نام ہے کہ جن کے لیے خداوند عالم نے اسکول نہیں ہونے والے کو یا میرا شکریہ ادا کرا, اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اور احسان صرف 3 ذاتوں کا ہے کائنات میں لوگوں کے اوپر. لاکھوں روپے کسی کے اوپر کوئی لٹا ڈالے, کوئی احسان نہیں ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے, سنیے, قرآن ناطق و ثابت کا نظریہ یہ ہے کہ مادیات میں سے, دنیا و ما فیہا میں سے
महसूसात में से हीरे जवाहरात और दिरहम दिनार और सोने चांदी के सिक्के अगर लाखों किसी को लुटा दिए जाए तो लेने वाला एहसान करता है, देने वाला एहसान नहीं करता। ये न सोचा जाए कि हमने एहसान कर दिया है तो दे रहे हैं, वो ले रहा है तो एहसान कर रहा है मादियात में। मगर लेकिन 3 जगहों पर एहसान माना गया है। कहा? अल्लाह का, कि हमें लिबास वजूद अता फरमाया, माँ बाप का, कि उनके जरिए से खुदा मुक़ादिर मुतलक अरबों खरबों इंसानों को चाहता तो जनाबे आदम और हव्वा के बाद भी खल्क फरमा देता। माओ की एक दूसरी अजमत भी सुन लीजिए, बाप के मुकाबले में, बाप की नाकदरी से बचते हुए, बैलेंस को बरकरार रखते हुए खुदावंद आलम ने जनाबे आदम और हव्वा के बाद किसी को बगैर माँ बाप के पैदा नहीं किया। चाहता तो पैदा कर देता, मगर उसने एक निजाम सिस्टम बनाया। मगर जनाबे ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ के पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ क्या है? जहेज खूब दिए जाते हैं, जो वाजिब भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं। और विरासत में लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, जो वाजिब है। लड़कों को दिया जाता है, बेटों को दिया जाता है, और बेटियों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए नहीं दिया जाता कि उन्हें गैर की अमानत समझा जाता है, उनका विरासत में हिस्सा है बाकायदा। इस्लाम और कुरान को साबित के फरमान की रोशनी में उन्हें दिया जाता है। जहेज किसने डालने के लिए? आप महर का पैसा लीजिए दामाद से, और उसी महर के पैसे से बारातियों के खाने का इंतजाम कीजिए, जहेज का इंतजाम कीजिए, जो वाजिब है। जहेज किसने डाल देने के लिए? विरासत वाजिब है, देना है, हक है। जनाब ईसा को खुदावंद आलम ने बगैर बाप के पैदा करके बताया, बगैर माँ के नहीं पैदा किया। कि माओ की अजमत को पहचानो, मैंने बगैर बाप के पैदा करके दिखाया है, बगैर माँ के नहीं पैदा किया जनाब ईसा को। तो माँ असल है या बाप असल है? ये तो दौरान जाहिलियत के अरबों का ये उसूल और दस्तूर था, जिनकी नजर में बेटियों की, माओ की कोई वैल्यू अजमत नहीं थी। उनकी अजमत को, उनकी इज्जत और सरबुलंदी को बरकरार रखने के लिए पैगम्बर खत्मी मर्तबत को खुदावंद ने 4 और चारों को दुनिया से बुला लिया। बुलाने के बाद जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जैसे बेटी से नस्ल चला के बताया कि जो अरब बद्दू जाहिल अरब, हैवान, जंगली, वहशी अरब ये कहा करते थे बनूना, बनू अबनाना, बनू बनातना, बनू अरियाना, हमारे बेटों की औलादें हमारी औलादें, हमारी बेटियों की औलादें गैर की औलादें हैं। नवासों को, नवासियों को अपनी औलाद नहीं समझते थे, पोते और पोतियों को अपनी औलाद समझते थे। पैगम्बर को खुदावंद ने बेटी से नस्ल कसीर की शक्ल में चला के बताया कि देखो, अगर तुम्हारी नजर बेटे असल है तो मेरी नजर में बेटी असल है। हम लोग भी आज हमारे समाज, सोसाइटी, मुआशरे में भी बिल्कुल वही दौरान जाहिलियत वाली रस्म चल रही है। जहेज बेच दिया जाता है अपने को देने के लिए, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, खेत सब बिक जाते हैं, मगर काश वही एक बालिश जमीन सही जो बेटों को दी जा रही है, उसी बेटियों को भी दिया जाए, न दिया जाए, जाए किसने का जहेज दिया जाए, वापस कर दी जाए ऐसी बारात जो जहेज मांगने वाली हो, वापस कर दिया जाए ऐसे दामाद को जो जहेज लेने वाला हो, पैसे लेने वाला हो। ऐसे भिखारी दामादों को बेटियां न दी जाए। पैगंबर ने क्या किया? जनाबे मौलाए कायनात जैसे फातिह, बद्र, अदो, खैबर, खंदक, अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु से फरमाया, अली सवारी की तुम्हें जरूरत है, घोड़ा रहने दो। तलवार की जरूरत है एक शुजा बहादुर के लिए दुश्मनों जालिमों का मुकाबला करना, इसे रहने दो। ज़रा एक बहादुर शुजा के लिए ज़रा की कोई जरूरत नहीं, ज़रा को बेच दो और उसी ज़रा के पैसे से महर दो, और उसी महर के पैसे से मैं जहेज का सामान इंतजाम करूंगा और फिर जहेज पे और उसी पैसे की शादी होगी। पैगंबर अकरम चाहते तो जन्नत से जहेज आ जाता, बहिश्त से जहेज आ जाता, हीरे जवाहरात जहेज में दे देते, दिरहम दिनार के ढेर लगा देते, मगर मौलाए कायनात से पहले महर लिया है और उसी महर से सारा इंतजाम हुआ है। और बेटी को विरासत में हिस्सा दिया, विरासत से पहले हिबा करके बाबे फिदर को बताया कि बेटी असल होती है, बेटे असल नहीं होते हैं। मगर याद रखिए कि इस्लाम और कुरान नातिक को सामत की नजर में बेटा भी असल है, बेटी भी असल है, दोनों से नस्लें चलती हैं। ये दौरान जाहिलियत की रस्में आज हमारे यहाँ भी चल रही हैं। इसीलिए खुदावंद आलम ने माओ को अजमत दी है।
जन्नत माओ के पैर के नीचे करार दी है, ताकि माओ की अजमत को पहचाना जाए और बापों की नाकदरी से भी बचा जाए, बैलेंस बरकरार रहे। जानकारी बस बच्चों ने अपनी माँ के लिए मजलिस बर्पा की है, बरसी की मजलिस है। हमारे समाज सोसाइटी मुआशरे में ये रस्म है कि कुरान खानी होती है। हमारे प्रोग्रामों का आगाज भी कलाम परवरदिगार आलम से होता है कि जो कलाम मासूमीन और कलाम अंबिया के तर्जुमानी करता है। कुरान कलाम है परवरदिगार आलम का, मगर उसमें तर्जुमानी की है अल्लाह ने। बहुत सारे अंबिया के कलाम जो जुबान पे जारी हुए, अहले मासूमीन की जुबान पर जारी हुए, अहले बैत ताहिर की जुबान पर जारी हुए, मासूमों की जुबान पर जारी हुए, खुदावंद आलम ने दामन कुरान में जगह दे दी। इसलिए कलाम परवरदिगार कहा जाता है। उसके फरमान की रोशनी में ये वो अजमत इस्लाम और कुरान नाफी को साबित ने दी है माओ को और वालिदैन को। आज दुनिया ने उसे समझा होता और समझाया होता तो आज नाकदरी न होती। आज हमारी माओ बहनों को दुनिया के चक्कर में न फंसाया जाता। क्या दुनिया इस्लाम कुरान से बढ़कर अजमत और फजीलत और इज्जत और एहतराम दे सकती है? जो कुछ भी सीखा है, अच्छाइयाँ अगर कहीं नजर आए तो समझ जाइए इस्लाम और कुरान नाफी को साबित की देन है। बुराइयाँ अगर नजर आए तो समझ जाइए इनके दुश्मनों की देन है, जालिमों की देन है। दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छाई और नेकी नजर आए, खूबी नजर आए, भलाई नजर आए, इंसानियत और आदमी को शराफत नजर आए, इज्जत और एहतराम नजर आए, तो समझ जाइए ये कुरान नाफी को साबित से सीखा गया है। मगर हमें नहीं छोड़ दिया। लोगों की बुराइयां हमारे अंदर आ गई, लोगों के रस्म रिवाज हमारे यहाँ आ गए, हमारी अच्छाइयाँ और नेकियां खूबियां दूसरों के यहाँ चली गई, चाहे मर्दों से मुताल्लिक हो चाहे खवातीन से मुताल्लिक हो। काश हमने सही पैगाम दिया होता और लिया होता। तो माँ की मजलिस है, एक शौहर ने अपने ज़ौजा के लिए मजलिस बर्पा की है। हम मजलिस हुसैन का सहारा लेते हैं, जिसमें आगाज भी अल्लाह के नाम से होता है, जिसका इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर होता है। बीच में भी बयानात भी जो होते हैं तो अल्लाह और इस्लाम और कुरान नाफी को शामिल की रोशनी में होते हैं। अज़ान गिरामी, माँ एक अजीम नेमत होती है। जिनकी माएँ अभी दुनिया में जिंदा हैं, अभी दुनिया में मौजूद है, वो कदर को पहचाने। बाप माँ दुनिया से चली गई है तो उसकी तलाफी बाप की इज्जत और एहतराम और खिदमत से करें, और माँ के लिए सारे सवाब करके कुरान खानी करके खुद कुरान पढ़ें। दूसरों के कुरान पढ़ने से उतना सवाब नहीं मिलता है जितना खुद औलादें पढ़ने से मिलता है। काश औलादें कुरान पढ़ना सीख लें, काश औलादें खुद फातिहा पढ़ना सीख लें, नज़र करना सीख लें, और बारगाह परवरदिगार आलम में दस्ते दुआ बुलंद करके कहें, माबूद हमारी माँ तो इस दुनिया में नहीं रहेगी मगर बाप अभी जिंदा है, बाप के वजह से उसका जुबान करें, तलाफी करें, ताकि वो जो कसर रह गई है वो बाप की खिदमत से पूरी हो जाए। बाप दुआ दे, माँ की रूह खुश हो। जब माँ की रूह खुश होगी और बाप की जुबान से जब दुआ निकलेगी तो उम्र में भी बरकत होगी, रोजी रोजगार में भी बरकत होगी, सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी, और समाज सोसाइटी मुआशरे में भी और अल्लाह और अल्लाह वालों की नजर में भी इज्जत एहतराम बढ़ेगा। अगर किसी को अपनी इज्जत और एहतराम अल्लाह और अल्लाह वालों की नजर में बढ़ाना है, समाज सोसाइटी मुआशरे में बढ़ाना है, तो माँ बाप की कदर करे, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की खिदमत करे। वरना याद रखिएगा कि हमारे बच्चे अगर हम कदर करते हैं तो नाकदरी होती है, और अगर हम नाकदरी किए होंगे अपने माँ बाप की तो हमारी कदर कितनी होगी तो अंदाजा लगाया जाए। जी जवाब मिलेगा इसी दुनिया में, इसी समाज सोसाइटी मुआशरे में। मगर फिर भी हम ये कह रहे हैं कि बुराई का बदला बुराई से न दिया लिया जाए, बुराई में कंपटीशन न किया जाए, अच्छाइयों में कंपटीशन किया जाए। अच्छी औलादों को देखा जाए, माँ बाप की खिदमत करके अच्छाई को खरीदा जाए, अच्छाइयों में कंपटीशन किया जाए। नालायक औलादों को न देखा जाए बल्कि लायक औलादों को देखा जाए, और लायक औलादों को देखकर अपने माँ बाप की कदर की जाए, उनकी खिदमत की जाए। नालायक औलादों को न देखा जाए, शैतानों को न देखा जाए, शैतानत को न देखा जाए, बुराइयों को न देखा जाए, बुराइयों में कंपटीशन न किया जाए बल्कि अच्छाइयों में कंपटीशन किया जाए। माँ बाप की अजमत को पहचानना है तो जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
18 साल की उम्र में। अल्लाह अकबर। जिस उम्र में हमारे बच्चियों की शादियां भी नहीं होती हैं, पढ़ाई लिखाई के बहाने, किसी न किसी बहाने, उस उम्र में शहजादी आलमियान 4 बच्चों की माँ पाके जनाब मोहसिन की शहादत हो गई। 4 बच्चों की माँ बनकर उस ऐसी मुकम्मल जिंदगी गुजार के गई कि पैगंबर की जुबान मुबारक पे ये जुमला आ गया, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी रिसालत का टुकड़ा है, रिसालत का जुज़ है। ऐसी मुकम्मल जिंदगी कि सैयदे निसाइल आलमीन बन गई, मगर दुनिया ने उनकी कदर नहीं की और इतना सताया। काश दुनिया ने आज कैसा ना होता। आज किसी के घर पे किसी का इंतकाल हो जाता है, लोग तसल्ली दिलासा देने के लिए आते हैं ना, कोई तमाचे तो नहीं मारता, कोई आग और लकड़ी तो लेकर नहीं आता, दरवाजे में आग लगाने के लिए तो नहीं आता है ना। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कोई गुजर जाता है तो लोग उसके दरवाजे पे जमा हो जाते हैं, चाहने वालों को तसल्ली देने के लिए, पुरसा देने के लिए, दिलासा देने के लिए। पैगंबर की इकलौती बेटी, पैगंबर की आग बंद होते ही लौहा पड़ना पड़ गया। सुबत अलैया मसाइबुल्लाह, सुबत अलैया मसाइबुल्लाह। बाबा बाबा आपके ऊपर इतने आपके बाद आपकी बेटी इकलौती बेटी बाबा, बजाय इसके कि लोग अपनी जमीन जायदाद पर पर्चे लाके मेरे हवाले कर देते कि पैगंबर की इकलौती बेटी आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर हमारा पैगंबर इस दुनिया से चला गया तो आप परेशान न होइए, हम उम्मते पैगंबर अरे अभी जिंदा है, आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होने देंगे, एहसास नहीं होने देंगे आपके बाप के चले जाने का, आपके पितर से महरूम हो जाने का एहसास नहीं दिलाने होने देंगे। मगर काश दुनिया ने ये किया होता, बजाय इसके अरे जो बागे पे तकलीफा कर दिया था पैगंबर ने, उसे भी गस्ब कर लिया गया और गस्ब करने के बाद अरे दुनिया ने इसी पे कनात नहीं की, इक्तबा नहीं की, बल्कि दरवाजे पे आकर लकड़ी लेकर जमा हो गए। ए फातिमा अली को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। ए फातिमा तेरा फरियादों को करती रहे, अरे क्या उस घर में आग लगा दोगे जिस घर में पैगंबर तुम्हारा नबी अरे नमाज़ें सुन के बाद सलाम के लिए आया करता रहा, अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाह व बरकातहू। अरे क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे अरे जिसमें मलाइका का नुज़ूल हुआ करता था, अरे जिब्रील और मीकाईल खिदमत के लिए आया करते थे, अरे जिस दरवाजे पे सितारे ज़ोहरा उतरा, अरे जिस दरवाजे पे रिज़वाने जन्नत को दर्दी बन के आना पड़ा, मगर दुश्मनों ने एक नहीं सुनी। क्या उस घर में आग लगा दोगे जिसमें नवाज़े पैगंबर आराम फरमा रहे, अरे जिसका झूला झूलाने के लिए जिब्रील और मीकाईल आया करते थे, मगर मुसलमानों ने कलमा गोयों ने एक नहीं सुनी। ये कुफार और मुशरिकीन नहीं थे, ये यहूद और नसारा नहीं थे, ये बजरंग दल वाले नहीं थे, आरएसएस वाले नहीं थे, शिवसेना वाले नहीं थे, अरे ये बुत परस्त नहीं थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, ये कलमा पढ़ने वाले नाम के मुसलमान थे घुसपैठिया, अरे जिन्होंने रसूल का कलमा तो पढ़ा मगर रसूल की औलादों को, नवाजों को, बेटी को, इकलौती बेटी को इतना सताया कि नवा पढ़ना पड़ा बाबा। अरे आपके बाद इतना सताया गया, इतने मसाइब के पहाड़ तोड़े गए कि बाबा अगर दिन भर पढ़ते तो रात की तारीकी में बदल जाते। और शहजादी को वसीयत करनी पड़ी, ए अबुल हसन जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो गस्सलीनी कफनीनी दफनीनी बिल्लैल। ए अबुल हसन रात की तारीकी में मुझे गुस्ल दीजिएगा, रात की तारीकी में मुझे कफन बनाइएगा और रात की तारीकी में मुझे कब्र के हवाले कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मासूम आलम बड़े दर्दनाक मुसाफिर शहजादी आलमियान फातिमा ज़हरा के खास तौर पर उनकी रुखसती बहुत ही दर्दनाक है।
फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया से गुजर जाती है। अब हम आते के बच्चों, आपकी माँ जब दुनिया से गुजरी तो आपके दरवाजे पे लोगों का हुजूम, चाहने वालों का, गांव वालों का, दिलों का, रिश्तेदारों का। अरे कोई शौहर को दिलासा तसल्ली दे रहा होगा, कोई बेटियों को समझा रहा होगा, कोई बच्चों को समझा रहा होगा। किसी ने तमाचे तो नहीं मारे, किसी ने तालियाने तो नहीं मारे, अरे किसी ने दरवाजे में आग तो नहीं लगाई। अरे सबने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ गुस्ल कफन के बाद जनाजे को उठा के सुबह लाया किया होगा। मगर पैगंबर की इकलौती बेटी की तब, अरे अभी यही 8 शव्वाल आने वाली है, जन्नतुल बक़ीअ की टूटी हुई है। अरे फरियाद और फुफा कर रही है, ए मेरे बाबा के उम्मतियों, मेरी कब्र को भी तुमने मुनादिम कर डाला। अरे मुझे मेरी कब्र में भी सुकून से नहीं रहने दिया। अल्लाह वसीयत मासूम आलम के मुताबिक मौला कायनात ने रात की तारीकी में रिज़ाना में फातिमा मेरा को सब कुछ देना शुरू किया। एक मर्तबा चीख मार कर अली इब्न अबी तालिब रो पड़े। सलमान अबू दर मेहदाद पैगंबर आगे बढ़े, ए फातिमा बदरो करना के लिए आप कभी नहीं रोए इतने आवाज बुलंद करके। आखिर कैसी मुसीबत पड़ी कि आप चीख मार कर रो पड़े। अल्लाह मौलाए कायनात सर को झुकाए, अरे फरियादों को बुलंद करने लगा, हाय साबिरा, हाय मजलूमा, हाय मगसूबा, हाय मजलूमा। अरे पसलियां टूट गई थी, अरे जब जब सांस लेती रही होगी बड़ा दर्द होता रहा, बड़ी तकलीफ होती रही होगी। सबसे बड़ा दर्द और तकलीफ पसलियों के दर्द से होता है। डॉक्टरों को पता है कि पसलियों के दर्द में तकलीफ होती है। एक डॉक्टर मजलिस में किसी मजलिस में मौजूद था और किसी ने फैजात वगैरह सुना कि पसलियों के टूटने का जब जिक्र किया तो डॉक्टर ढाले मार मार कर चीख मार कर रोने लगा। कुछ देर तक जब वो रोता रहा तो लोग आगे बढ़ के पूछने लगे, भाई किसी इस मरहुमा से क्या रिश्ता है। उसने सोचा, लोगों ने सोचा कि शायद इस मरहुमा से जिस मुमिना की मजलिस थी कोई बहुत खास रिश्ता रहा है। तो उसने बढ़कर जवाब दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुमने जो मसाइब मैंने सुना है उस मसाइब में अरे फातिमा ज़हरा की पसलियों का जो जिक्र किया गया, मैं खुद हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। अरे जिस्म बदन की किसी हड्डी के टूटने का दर्द और तकलीफ उतना नहीं होता दर्द, अरे जितना पसलियों के टूटने का दर्द होता है। अरे जब जब कोई सांस लेता है, अरे पसलियों के दर्द में और तकलीफ में इजाफा हो जाता है। अरे फातिमा ज़हरा की पसलियां टूटी और मुद्दत उसी तकलीफ और दर्द में मुब्तला रही। यही वजह है कि मौलाए कायनात चीख पर बार करो पड़े। अलगरज मौला कायनात ने कफन बनाया और कफन बनाने के बाद अब बच्चों को आवाज दिया, बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। आज हमारे यहाँ भी ये दस्तूर पाया जाता। अरे जब कफन बनाने के बाद जनाजा तैयार हो जाता है और जनाजा लेकर जब कब्र की तरफ चलने लगते हैं तो बच्चों को वरसा को बुलाया जाता है, आओ मरने वाले के चाहने वालों, आओ आखिरी दीदार कर लो। फातिमा ज़हरा का जनाजा तैयार, मौलाए कायनात ने आवाज दी, ए बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। एक मर्तबा इमाम हसन मुस्तफा आए, माँ का आखिरी दीदार किया, रुखसत हो गए। बच्चियां आई, माँ का आखिरी दीदार किया, रुखसत हो गए। मगर छोटा शहजादा हुसैन एक गोशे में खड़ा चुपके चुपके आंसुओं से रो रहा है। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने आवाज दी, ए मेरे लाल हुसैन, क्या तुम दीदार नहीं करोगे? बच्चे जो सबसे छोटे होते
सासों के बेटे अगर होते तो दोनों में बड़ा एक कभी लगाव होता है, माँ की ममता होती है और बच्चे की मोहब्बत होती है। बाप की डांट फटकार से भी कभी परेशान हो जाते हैं तो माँ की आगोश का सहारा लेते हैं, ममता का सहारा लेते हैं। एक मरतबा हुसैन ममनून ने बाबा बाबा मेरा ये रसूल जिंदगी में भी अल्लाहु अकबर हम साहिब-ए-जान हैं, मेरी माँ भी साहिब-ए-जान है और मैं खुद साहिब-ए-जान हूँ। बाबा साहिब-ए-जान का बेटा साहिब-ए-जान आवाज दे रहा है, अरे साहिब-ए-जान मैं जब जिंदगी में बगैर बुलाए नहीं आता था तो आज भी बगैर बुलाए नहीं आऊंगा। अभी बाप बेटे में गुफ्तगू हो ही रही थी, बंदे कमर टूटे दोनों हाथ बुलंद हो गए। ए ले लाल हुसैन राजा मेरे सीने से हुसैन मजलूम दौड़ते हुए आगे बढ़े, माँ के आगोश में माँ के सीने से लिपट कर बयान करना शुरू कर देते। ए अम्मा फातिमा ज़हरा आपने चक्कियाँ पीस पीस कर पढ़ाए अम्मा, अरे आपका लाल हुसैन जब करबला मैं भूखा और प्यासा खंजर में दिबा हो रहा होगा। ए अम्मा आप मैं छोड़ के चली गई, माँ बेटे में फरियाद हो रही है, माँ बाप तेरे लाल हुसैन का बुलाना नहीं, अरे तेरे मक्तल की खाल अपने बालों से साफ कर रही होंगी। अभी माँ बेटे में गुफ्तगू हो ही रही थी, एक ऐसे आदम पे कोराम बर्फा हो गया। जिब्रील और मीकाईल ने आकर आवाज दी, अली हुसैन को जल्दी जुदा कर लो, अर्श आदम पे कोराम बर्फा है। हुसैन मजलूम को प्यार और मोहब्बत से जुदा किया, तसल्ली और दिलासा देकर जुदा किया, गले से लगाया मेरे लाल हुसैन सब्र करो, मैं आवाज दूंगा ए मौला, ए आका हुसैन कल सरजमीन करबला होगी और एक माँ यही आपकी मादर गिरामी होगी। जब खून खंजर चल रहा होगा यही आपकी माँ बात दे रही होगी, ए अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए शिमरे बेहया मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे घेरा है तालिमों ने मेरे नूरैन को, तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। ये माँ फरियाद होगी और आप ही की लाश बेसर होगी, आपकी लाडली बेटी सकीना आपकी लाश बेसर से लिपट कर बयान कर रही होगी और कभी शिब्र तमाचे मार रहा होगा, कभी शिब्र ताबियाने मार रहा होगा। पालने वाले हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और तहारत उनकी मजलूम तवास्सा, हमारी जान माल इज्जत और नामों की हिफाजत फरमा, हमें दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम हमें शुमार फरमा। हमारे दुनिया में किसी बेदीन का मुहताज करार न दे महबूब, हमारे दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद मेलजोल भाईचारगी और दोस्ती की फदा को हमेशा बरकरार रख। तमाम ज़ाहिरी बातनी जिस्मानी बदनी रूहानी छोटी बड़ी बीमारियों से बलाओं से वबाओं से हमें महफूज है। मोहम्मद का वास्ता हमें सीरत मासूम पर सीरत मासूम आलम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हराम कामों से तौफीक अता फरमा, नजाकत से बचने की तौफीक अता फरमा, नाजायज़ कामों से बचने की तौफीक अता फरमा, हलाल रोज़ी की हमें तौफीक अता फरमा, जायज़ पाक व पाकीज़ा रोज़ी की हमें तौफीक अता फरमा। माबूद हमें इस्लाम और कुरान की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम और कुरान की तालीमात हासिल करने में माबूद जल्द से हम ताउन करें, मुबल्लिग़ वाक़ई को मुबल्लिग़ वाक़ई के साथ, मुबल्लिग़ वाक़ई को मोमिन वाक़ई के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमा। माबूद तमाम मुक़द्दस मकामात की रौनक को दोबारा फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। माबूद जिन लोगों के हज ज़ियारत की तमन्ना में हज ज़ियारत की तमन्नाओं से सरफराज फरमा, हज और ज़ियारत के रास्तों को खोल दे, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, कर्तम इस्लाम और ईरान और इराक़ को सरबुलंदी अता